अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी एसपीएस लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वी वेलकम यू टू द राइट प्लेस। यहाँ हम शेयर करेंगे अपनी सक्सेस टिप्स, स्ट्रेटजीज़ और वो प्रॉपर तरीका जिससे आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। हे एवरीवन, नेटवर्किंग एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ मिस कर दी है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। बहुत इसेंशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो डोंट मिस इट। हियर इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ computer networking MCQs. What is computer networks? A collection of interconnected computers and devices that can communicate and share resources. सो सिंपली अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड, इधर आपके वो कंप्यूटर्स हो या डिवाइसेस हो जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और इसके साथ साथ शेयर करें रिसोर्सेज जैसे फाइल्स, प्रिंटर, इंटरनेट हैज़ एक्सप्लेनेशन। A network connects computers and devices to share resources like files, printer, and internet. Question number two: which of the following is an example of Bluetooth? So it's a personal area network. Personal area network में ही जो ब्लूटूथ है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ इट। नेशन ब्लूटूथ कनेक्ट्स पर्सनल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर यहाँ पर डिस्टेंस की बात की जाए तो अप टू 8 मीटर्स जो है वो मोस्टली डिस्टेंस को जो है वो काउंट किया जाता है। सो इट्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। Question number three: how many layers are there in OSI reference model? So it's an open system interconnection. It includes 7 layers. The OSI model has 7 layers, physical to application layers. So let's see the layers of OSI model. It's a first physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, application presentation layer, and application layer. Which device forwards packets between network? It's a router. Router is a centered device in networking which forwards packets between network. Router forwards packets based on IP address. IP is an internet protocol. Which question number five? Which are transport layer protocols? So it's a TCP and UDP. TCP और UDP दोनों जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से, और अगर हम बात करें HTTP और FTTP की तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. So the right option is C, TCP and UDP. Question number 6: UDP is called connectionless because all UDP packets are treated independently. Explanation: UDP sends data gram without establishing a connection. अब होता क्या है कनेक्शन लेस सिस्टम में, जब भी आपके जो डेटा है वो सेंड की जाती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो डेटा है वो इस्टेब्लिश नहीं किया जाता. सो हमारे पास इसमें कोई आपकी जो डेटा, तो लेट्स see about more that what is connectionless. Connectionless in networking is a connectionless communication means that data is sent from one device to another without first establishing a dedicated connection. Each piece of data called packets is treated independently and there's no guarantee that packets will arrive in order or arrive only once or even arrive at all. So this is the concept of connectionless. Question number 7: which layer is responsible for end-to-end delivery? It's a transport layer. Transport layer is the responsible for end-to-end delivery. Explanation: transport layer ensures end-to-end delivery of entire message. Now let's see the concept of end-to-end. What does mean by end-to-end delivery? End-to-end delivery in a networking means that data is successfully transmitted from the source to destination in the correct form and order without loss or duplication. Question number 8: IP stands for, it's an internet protocol. IP, internet protocol, responsible for addressing and routing packets. So let's see the simple definition of IP. IP is a unique address assigned to each device connected to a network. रियल लाइफ की एग्जांपल लें, आईपी एड्रेस जो है वो हर नेटवर्क में हर डिवाइसेस की एक यूनिक आईडी होती है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है उस डिवाइसेस को. अब एक फॉर एग्जांपल
जैसे कि हर बंदे का एक यूनिक जो है वो एनआईसी नंबर होता है, सेम जो है वो आपके नेटवर्किंग में जितने भी आपके डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं उनकी एक यूनिक आईडी होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट नेटवर्क इज दैट इज़ अ आरपा नेटवर्क, जो कि स्टैंड्स फॉर Advanced Research Project Agency Network, and it was first network to implement the concept of packet switching, or we can say modern internet. ARPANET was the grandfather of internet. Question number 10, data link layer deals with। अब अगर हम बात करें जो आपकी डेटा होती है, जो OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, उसमें हमारी जो डेटा सेंड की जाती है फ्रॉम फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन एंड वाइस वर्सा। सो हर एक लेयर में जो हमारी डेटा होती है उनकी जो फॉर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक हमारी जो 3 वाली लेयर्स होती हैं, लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, इसमें जो डेटा होती है उसे डेटा ही काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें जो डेटा होती है उसको सेगमेंट्स कहा जाता है, नेटवर्क में इन्हें पैकेट्स कहा जाता है, डेटा लिंक लेयर में इन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, frames. Data link layer transmit data as a frame. Question number 11, TCP provides, TCP is a connection oriented reliable service. So option A is the right, that TCP provides reliable connection oriented service. Explanation, TCP ensures a reliable delivery via connection establishment। अब इसमें होता है क्या है, हमारे पास दो चीज़ें, एक है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर हम बात करें कनेक्शन लेस की तो उसमें जो है वो बिफोर सेंडिंग डेटा कोई कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया जाता। मगर कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, डेटा को सेंड करने से पहले जो है वो एक जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। सो यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस, वेयर एज टीसीपी इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड। रिलायबल भी है क्योंकि उस कनेक्शन लेस में जो है वो हमें पता नहीं होता कि आइदर जो हमारी डेटा है वो जो है प्रॉपर ऑर्डर में जो है वो जो है वो रिसीव्ड होगी। बट कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो रिलायबल होती है, हमें गारंटी होती है जो डेटा है वो ऑर्डर फॉर्म में और करेक्ट फॉर्म में रिसीव्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 12, SMTP is used for email transfer protocol. So option B is the correct, whereas SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol used to send emails. आप जितने भी ईमेल सेंड करते हो वो आपका जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल यूज़ होता है टू सेंड्स द ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर स्विच। ये हमारे पास कुछ सेंटर डिवाइसेस होते हैं, लाइक जैसे आपका स्विच हो गया, हब हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, जिसके थ्रू जो है बाकी जो डिवाइसेस है उनको कनेक्ट किया जाता। सो स्विच इज़ अ डेटा लिंक लेयर। एक्सप्लेनेशन, स्विचेस ऑपरेट एट अ डेटा लिंक लेयर 2। क्वेश्चन नंबर 14, IP एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। इट्स अ 30 बिट। जो आपकी IP एड्रेस जो है वो 32 बिट्स पे जो है वो डिपेंड करती है। इट्स एक्सप्लेनेशन, IP वर्जन 4 यूजेस 32 बिट एड्रेस। IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो वो 32 बिट की है। अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें तो फिर वो जो है 128 बिट्स पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15, DNS ट्रांसलेट्स, इट ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP। सो एक्सप्लेनेशन, DNS maps domain names like google.com to IP address। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। DNS, it works like an internet phone book। DNS converts domain names into IP addresses। Example, you type www.google.com into your browser, DNS translates into 142.250.190.132। अब देखिए, जब भी मोबाइल में अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर को मेमोराइज़ करना इट्स अ वेरी टफ जॉब कि आपके पास पता नहीं कितने कॉन्टैक्ट नंबर हो। उन्हें नेम से जो है वो कि फॉर एग्जांपल जो IP एड्रेस है गूगल की, फेसबुक की, ट्विटर की, इन्हें मेमोराइज़ करना इट्स अ टफ जॉब फॉर ह्यूमन। सो इनको एक नेम दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ट्विटर। ठीक। सो इन दिस वे जो आपकी डोमेन नेम सिस्टम है वो वर्क करता है। HTTP, इट्स अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्क्स ऑन विच पोर्ट। इट्स
80 port. Its port number is 80. Explanation: HTTP uses port 80. Question number 17. FTP is used to transfer file. एक्सप्लेनेशन AFTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज इक्वल टू फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें सो ये एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होता है जो कि आपकी जितनी भी ट्रांसफ़र होती हैं फ़ाइल्स आइदर ऑन इंटरनेट या फिर ब्राउज़र्स में, आइदर आप जो है वो अपलोड करें या फिर डाउनलोड करें, वो आपका जो काम है इट्स अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क। Question number 18. ICMP, it's an Internet Control Message Protocol, is used for error reporting. Error reporting के लिए जो हमारे पास प्रोटोकॉल है यूज़ होता है दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन: ICMP reports error and diagnostic ping commands. Question number 19. A network of networks is a internet. जब आपके मल्टीपल नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हो विथ ईच अदर, so that is known as a internet. Explanation: internet connection connects multiple networks of network simply is known as a internet. Question number 20. The physical path for data is transmission medium. फिजिकल पाथ की जब भी बात आती है तो हमारे पास जो चैनल या फिर जो ट्रांस मीडियम है उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा फिजिकली ट्रेवल्स इन ट्रांसमिशन मीडियम लाइक केबल्स, fiber, air. These are the physical path. Thank you for watching. Subscribe to my channel Learn with Hana for more updates.